student. So far we have discussed about one dimension random variable and we have calculated its probability mass function, probability density function and so more. Now today I am going to tell you about two dimension random variable. Whether I have just told you in the first lecture of the random variable that there are two types of random variable, one dimension and two dimension, but now we are going to discuss it in detail. Of two dimension random variable. Now in one dimension random variable, we see only a one point that is belonging to our sample space, but sometimes there is a need for two coordinates. Suppose that you are recording height and weight of every person in a certain educational institution. So there is a requirement of height and weight. So you are going to make the ordered pairs of respective height and respective weight. So here in this case we need two dimension random variable which will be represented in the form of ordered pairs. Now let us see its definition. Let S be the sample space associated with a random experiment. We have any sample space which is associated with some random experiment, means any experiment is happening there randomly. And x is equal to x omega and y is equal to y omega be two functions each assigning a real number to omega belonging to sample space. Means there is an element omega that is belonging to the sample space and this x random variable is a function of omega and we are getting a real value in that. Then xy is called two-dimensional random variable. Then this pair xy is known as two-dimensional random variable, but this is also a function of omega and this is also a function of omega, and omega belongs to your sample space. Or we can read one more definition that let x and y be two-dimensional random variable on your sample space. Then the function of xy that assign a point in R square. देखिए अगर हमारे पास x random variable होता तो वो सिर्फ एक रियल वैल्यू टेक करता, लेकिन अगर xy है तो ये भी रियल वैल्यू लेगा, ये भी रियल वैल्यू लेगा. सो हियर वी हैव रिटन रियल स्क्वायर मींस रियल वैल्यूज का स्क्वायर. कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं r into r. It is called two dimensional random variable. Now there are two types of two dimensional random variable. Discrete two dimensional random variable. It says that if the possible values of xy are finite or countably infinite, अगर हमारे पास possible values xy की या तो finite हो या फिर countably infinite हो तो हमारे पास discrete two dimensional random variable मिलेगा. Continuous की बात करें, कोई भी वैल्यू हो हमारे पास xy प्लेन के अंदर. एग्जाम्पल से समझते हैं. A pair of dice is thrown and let x denote the number on the first die and y denote the smaller of these two numbers. सैम्पल स्पेस तो अगर हम दो डाइस फेंकते हैं तो ये सैम्पल स्पेस बनेगा जिसमें 36 आउटकम्स होते हैं हमारे पास. अब मैंने कहा आपको x11 क्या होगा. देखिए x क्या कहता है डिनोट नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. तो नंबर ऑन द फर्स्ट डाई 11 के केस में हमारे पास फर्स्ट डाई पे नंबर क्या है 1. सिमिलरली x12 की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे है 1. अब y क्या स्मॉलर ऑफ दिस टू नंबर. अगर मैं 11 की बात करूं इसमें y कैलकुलेट करना है मुझे तो इनमें से स्मॉलर नंबर क्या है 1 और इसमें 1 और 2 में स्मॉलर नंबर क्या है 1. तो ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे 1 1 और यहाँ से मिल जाएगा 1 1. तो मतलब हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स में x की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू निकालें और फिर जो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे उसको बोलेंगे हम टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल. अब इसको लिखने का क्या तरीका है. देखिए x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है. फर्स्ट टाइप पे हमारे पास 1 to 6 कोई भी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4 5 6 और y की पॉसिबल वैल्यूज मतलब स्मॉल जो नंबर है एनी ऑफ दिस टू नंबर तो कभी 1 मिल सकता है. किसी केस में स्मॉल नंबर हमें क्या मिल जाएगा 2. जैसे यहाँ पे 2 3 जो आउटकम है उसमें स्मॉलर मिलेगा 2 तो कभी 3 मिलेगा कभी 4 मिलेगा अप टू 6. हमारे पास y की वैल्यूज भी क्या आ जाएंगी. कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रही हूँ मैं इनका 1 2 3 4 5 6. तो ये हमारे पास इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल. अब डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस के लिए बात करते हैं. देखिए जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सपोज मैं आपको उसका ग्राफ बना के दिखाऊं. सपोज मैंने यहाँ ले ली 1 2 3 4 5 6. दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट. 1 2 3 4 5. तो इसमें हमें वैल्यूज क्या मिलेंगे फाइनाइट मिलेंगे. जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा 1 1 1 2. तो देखिए 1 1 ये पॉइंट रहेगा. सपोज मुझे 1 2 मिल जाए तो ये पॉइंट रहेगा. 1 3 भी मिलेगा आउटकम, 1 4 भी मिलेगा, 1 5 भी मिलेगा.
सिमिलरली 2 1 भी मिलेगा मुझे आउटकम, 2 2 भी मिलेगा, 2 3 भी मिलेगा, 2 4 भी मिलेगा, 2 5 भी मिलेगा। मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ सिमिलरली 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूँ, अगर मुझे हाइट और वेट रिकॉर्ड करना है, सपोज फर्स्ट हाइट मतलब हाइट मेरी 150 तो जरूरी नहीं है, तो 150.06 है सपोज, वेट है सपोज 56 kg, दिस इज इन सेंटीमीटर। सपोज यहाँ पे हाइट दे रखी है हमें 150.07, यहाँ पे वेट आ गया 56.5 kg। तो जो ये हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ये एक फाइनाइट वैल्यूज नहीं है, ये प्लेन में लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन में। मतलब जैसे मैंने ये कोई रेक्टेंगल है, यहाँ पे ले लीजिए आप 150.06 या फिर 150 ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए आप 160 या कुछ भी, यहाँ ले लीजिए 56, यहाँ लीजिए 57। तो इसकी जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो इस ग्राफ में इस प्लेन के अंदर, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जो लाई करेंगे। सपोज 150.6 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दूसरे की है, दूसरे की है, दूसरे की है, ऐसा कुछ फाइनाइट ग्राफ नहीं मिलेगा हमें, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा कि इसके अंदर वो वैल्यूज जो है वो हमारे पास लाई कर रही है। नेक्स्ट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। In one dimension random variable we have discussed about probability mass function, and here we are going to discuss about joint probability because we are talking about two random variables here. Now let's see its definition. If x and y is a two-dimensional random variable, अगर हमारे पास x और y two-dimensional random variable है, then the joint discrete, पहले बार probability mass function discrete के लिए लगता था और probability density function continuous random variable के लिए लगता था, यहाँ पे भी ये discrete के लिए लगेगा। Of xy is called joint probability mass function of xy and is denoted by pxy. This is important, इसे डिनोट करते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या है कि pxy at some point xi and yj, इसका मीनिंग है कि probability at x is equal to xi, comma probability is equal to y is equal to yj for some value xi yj for xy, and probability of xy xi yj at some other value will be 0। अगर ये हमारे पॉइंट्स नहीं है सैंपल स्पेस में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। In this I have made a table of probability. Here is x random variable and here I have written y random variable. Now probability of x1 y1, it will be p11, x1 y2 will be p12, x1 y3 will be p13. Similarly x1 ym will be p1m, और इसका जो समेशन है या फिर सम है, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है p1 डॉट से, क्योंकि देखिए यहाँ पे x1 जो है वो फिक्स है, लेकिन जो y वाली टर्म्स है, j वाली टर्म्स है वो वेरी करी, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। सिमिलरली नेक्स्ट x2 y1 तो प्रोबेबिलिटी 2 1, प्रोबेबिलिटी 2 2, प्रोबेबिलिटी 2 3, प्रोबेबिलिटी 2m, यहाँ पे 2 फिक्स्ड है और जो है j वाली टर्म्स वेरी करी, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ xn and y1, probability n1, xn y2 will be probability n2, and similarly here will be probability nm, and इसका समेशन क्या होगा, यहाँ पे n फिक्स्ड है और j वाले टर्म्स वेरी करें तो p n डॉट। अब प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, हमेशा 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा 1, क्योंकि देखिए फर्स्ट इसमें यहाँ पे मैंने लगाया p डॉट 1, क्योंकि यहाँ पे 1 फिक्स्ड है j वाली टर्म, लेकिन i वाली टर्म जो वेरी करेगी। यहाँ पे 2 फिक्स्ड है लेकिन j वाली x वाली टर्म्स वेरी करें, मतलब i वाली टर्म्स वेरी करें, तो p डॉट 2। सिमिलरली p डॉट m, इन सब का समेशन 1 है, यहाँ से भी सम 1 आ रहा है, यहाँ से भी सम 1 आ रहा है, तो डबल समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ij running from 1 to n and j running from 1 to m is 1, and it can be written as double summation of pxy xi yj is equal to 1. Now let us discuss it with the let x denote the number on the first die and y denote the smaller of these two numbers. So your sample space will be this, you already know it. तो हमें एक टेबल बनानी है, अभी टेबल देखते हैं कैसे बनी। फर्स्ट बात करते हैं x1 और y1, मींस x is also equal to 1, y is equal to 1, मतलब x पे नंबर आना चाहिए 1 और y पे 1 आ रहा है, इसका मतलब जो मिनिमम नंबर है हमारे पास वो भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो x1 आने के आउटकम्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स हैं, और मिनिमम भी 1 आए वो भी 6 है। देखिए 1 1, इसमें मिनिमम क्या है 1, 1 2 मिनिमम क्या है 1, 1 3 मिनिमम क्या है 1, सिमिलरली 1 4 1 5 1 6, तो ये बनेगा 6/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी।
नेक्स्ट इज x इज 1 एंड y इज इक्वल टू 2। x 1 में तो सारे आएंगे लेकिन मिनिमम 2 इनमें से कोई भी नहीं होएगा, ना ही हमारे पास जो 2 1 होता है। देखिए x पे 1 आएगा, ये सारे आउटकम्स बनेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी मिनिमम 2 नहीं होगा, तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज 0। सिमिलरली नेक्स्ट इज आल्सो 0 अप टू 6 इज 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। x 2 होना चाहिए, मतलब 2 1 2 2 अप टू 2 6 हो सकता है। अब इसमें मिनिमम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए इसमें मिनिमम है 1, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 आएगा। नेक्स्ट इज 2 3, इसमें मिनिमम आएगा 2 लेकिन मिनिमम चाहिए 1, तो सारे आउटकम्स कैंसिल हो जाएंगे, ओनली देयर इज वन आउटकम, सो 1/36। सिमिलरली नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2, 2 भी आया और 2 भी आया, मतलब फर्स्ट नंबर में 2 आया और नेक्स्ट में मिनिमम क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। सो देयरफॉर 2 1, इसमें मिनिमम क्या है हमारे पास? 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2, इसमें फर्स्ट पे 2 है और सेकंड मिनिमम भी क्या है? 2 है, तो ये आ जाएगा। 2 3 भी आ जाएगा, 2 4 2 5 2 6, देयर इज 5 आउटकम्स। सिमिलरली 3 के निकाल सकते हैं, 4 के 5 के 6 के। टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे? फॉर दैट प्रोबेबिलिटी आप इसको ऐड करेंगे, दैट इज 1/6, 6/36 इज 1/6। इसको ऐड करेंगे तो भी 1/6 आएगा, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 1/6। और यहाँ से इनको ऐसे कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो यार 11/36, नेक्स्ट इज 9/36, 7/36 अप टू 1/36। जब इनको ऐड करोगे तो यहाँ से भी आंसर बनाएगा, इनको ऐड करोगे यहाँ से भी आंसर बनाएगा। तो इस तरीके से हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस मार्जिनल probability function. Now let x, y be the discrete two-dimensional random variable that take up countable number of values xi, yi. Then the probability distribution of x is determined as follows. हम ऐसे determine करेंगे, that is probability of x xi is equal to probability of x is equal to xi, मतलब किसी random variable x और उसकी वैल्यू xi है, तो इसका probability x is equal to xi। यहाँ पे मतलब x जो है वो xi रहेगा और y की कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे x is equal to xi intersection y is equal to y1, x is equal to xi intersection y is equal to y2 up to yn. So it can be written as, देखिए x की वैल्यू तो xi है तो यहाँ पे i आ जाएगा, y की वैल्यू 1 2 m तक चेंज हो रही है, n तक चेंज हो रही है, तो समेशन pij, i तो फिक्स है, j रनिंग फ्रॉम 1 to m is equal to summation, it can be written as xi and yj, this is equal to pi dot, कि मतलब डॉट आ रही है पीछे, तो पीछे वाला चेंज हो रहा है लेकिन आगे वाला जो फिक्स्ड है। दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सिमिलरली वी कैन डिफाइन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। सो प्रोबेबिलिटी y एट yj इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू yj, और यहाँ पे जो है y की वैल्यू फिक्स्ड है, yj और x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, सो x1 x2 xn। इट कैन बी रिटन एज समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n pij, यहाँ पे i चेंज हो रहा है, उसमें j चेंज हो रहा था, xi xj i रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड डॉट अब यहाँ पे आई वाली प्लेस पे लिखी जाएगी डॉट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं इस टेबल से। अगर आपको मैंने कहा प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें क्या है, x तो 1 है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका क्या मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2 अप टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 6। So x is equal to 1, y is equal to 1, probability हमारे पास 6/36 प्लस इस पे वैल्यू प्रोबेबिलिटी है 0, देन 0, तो अभी 0 0, दैट इज इक्वल टू 1/6। तो ये क्या है, 1/6 आ गया। तो 1/6 ये पार्ट शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो साइड में जो लिखी होती है ना, इनको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। इस साइड में मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज लिखी होती है इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर। So by this I am doing this much only in this video. Let's meet in the next video with the conditional probability.